انہوں نے 6 یا 7 روایتیں بتائی، 7 بتائیں، میں کہتا ہوں 700 بتائیں، ساری کی ساری روایتیں لے آئیں، ان میں یہی ہوگا کہ صحابی یہ بتائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا۔ دونوں طرف عمل موجود ہے، کرنے کا بھی اور نہ کرنے کا بھی۔ اب اگر حدیث کی وجہ سے فیصلہ کریں گے تو کیسے فیصلہ کریں گے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضور کرتے تھے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضور نہیں کرتے تھے، اور یہ دونوں طرف کیا ہے؟ حضور کا عمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کا قول کس طرف ہے۔ حضور کا سارا قول آپ کو ملے گا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، لیکن رفع یدین کے بارے میں ایک حدیث بھی نہیں ملے گی جس میں حضور نے فرمایا رفع یدین کرو۔ جبکہ دوسری طرف جب ہم حدیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا حضور نے کہیں پہ رفع یدین کرنے سے منع بھی کیا ہے، تو اس کے سلسلے میں ہمیں حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی اور حدیث نمبر 1185 1185 صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک ہمارے پاس تشریف لائے، نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ اب حضور نے جب دیکھا تو حضور نے فرمایا قالا، یہ قالا ہے، یہ ہے حدیث قولی، ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ کانہا اذناب الخیل الشمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ یہ نماز میں رفع یدین والوں کو کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے ہاتھ ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ قولی حدیث ہمارے سامنے آ گئی۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دنیا جو اتنی رفع یدین نہیں نہ کرتی، ان کی دلیل نسائی شریف کے اندر ہے کہ حضور نے منع کر دیا۔ لہذا آپ کے پاس اگر قولی حدیث ہے تو آپ پیش کریں، میں یہیں پہ رفع یدین کروں گا۔ آؤ پیغمبر کریم نے چھوڑا، کیسے چھوڑا؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ کھولیے، امام مسلم رحمہ اللہ 3 حدیثیں لائے ہیں، 2 حدیثیں سلام کے بارے میں، 1 حدیث پوری نماز کے بارے میں۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ وکننا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر کریم نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم، اب رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو، کانہا اذناب خیل الشمس، اب تو یہ شریر گھوڑوں کے دم کی طرح تم ہاتھ ہلا رہے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، پوری نماز میں سکون سے ٹھہرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مجھے کہنے لگے مولانا اس کے اوپر والی حدیث سلام کے بارے میں نے کہا میں نے اوپر والی نہیں، یہ پیش کی ہے، اور اس پر ملا علی قاری فرماتے ہیں رواہ مسلم ویفید النصر، اس پر اتنا بڑا فقیہ دلیل دے رہا ہے، 10 دلائل میں اس پر پیش کر سکتا ہوں کہ یہ رکوع کے متعلق ہے، تو کئی دلائل موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، شروع میں رفع یدین ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے حضور کے بعد زمانے کی تبدیلی سے بڑے لوگ تبدیل ہوئے، لیکن جو لوگ حضور کے طریقوں پر پوری طرح قائم رہے ان میں بڑا نام حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ان کی امی نماز پڑھ رہی ہے اور آپ نے نماز میں کچھ جلدی کر دی، یعنی معمول سے ہٹ کر کے نماز تھوڑا سا تیز پڑھنا شروع کیا، تو اندر سے آواز آئی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کریں۔ آپ کی امی جان کہتی ہے اب تک مجھے کوئی امی کہنے والا نہیں تھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا، یہ امی کہہ کے لقمہ کون دیتا ہے، یہ امی کہنے والا کون ہے؟ تو کہتی جب پیٹ کی طرف میں نے توجہ کی تو میرے شکم سے آواز آ رہی تھی امی اللہ کی عبادت ذرا اطمینان سے کرنا، دنیا حیران ہے، عبد القادر کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہے؟ ارے کوئی بچہ ہے تمہارے شرک کی بھٹی سے؟ امام بخاری نے ایک ہی حدیث کی کتاب نہیں لکھی بھائی، بخاری اور بھی کتابیں لکھی ہے، یہ الادب المفرد، اس ادب المفرد کے اندر امام بخاری صفحہ نمبر 217 حدیث نمبر 990۔ اب آئیے ذرا حدیث سنیں، پوری ساری چیز تو بھول ہی گیا یار، جو مین چیز ہے میرے بھائی، حدیث پڑھنا شروع کر دیا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، ہاں یہ تو جان ہے عقیدے کی، تاکہ یہ بھی تو پتا چلے امام بخاری کتنے بڑے بریلوی تھے۔ ارے امام بخاری بریلوی تھے بھائی، رفع یدین اس لیے کرتے تھے کہ وہ شافعی تھے، شافعی تھے وہ۔ سنیے غوث اعظم جو رفع یدین کرتے تھے وہ اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ وہ حنبلی مسلک کے فالوور، وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک رفع یدین کرنا سنت ہے، وہ کرتے تھے، تو حضرت غوث پاک کرتے تھے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पूरा लास्ट तक वीडियो देखें। लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो बिल्कुल बात आपके समझ में आएगी। मैं आपके सामने कुरान और हदीस पेश करूंगा और कुरान और हदीस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं यहाँ पर किसी मसलक को लेकर नहीं आया। मुझे मसलक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे किसी मसलक से मत जोड़िए, मुझे सच्चाई से जोड़िए। कुरान और हदीस से जोड़िए और कुरान और हदीस की सच्चाई से जोड़िए। मेरा ईमान, मेरा मसलक कुरान और हदीस है और सच्चाई है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैंने आपको वीडियो दिखा दी। ये लोग मसलक को लेकर चलने वाले लोग हैं। इनको कुरान हदीस से कोई मतलब नहीं है। इनके मसलक के खिलाफ जब कुरान हदीस टकरा जाती है तो ये कुरान हदीस का इनकार कर देते हैं और अपने मसलक की बात को मानते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इन लोगों ने जो हदीस जो बयान की है वो हदीस है सही मुस्लिम के अंदर 968 नंबर और हदीस निसाई के अंदर है 1185 नंबर। हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास मस्जिद में तशरीफ लाए तो हम हाथ उठा रहे थे। आपने फरमाया कि उन्हें क्या हुआ है कि नमाज के अंदर हाथ उठा रहे हैं, मानो कि जैसे बिदकते हुए सरकस घोड़ों की दुमे हो। नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब ये हदीस है ना, ये हदीस जाकर कहां पर ये फिट कर रहे हैं? रफा उल यदैन के ऊपर ये फिट कर रहे हैं। हालांकि ये हदीस रफा उल यदैन के ऊपर फिट नहीं होती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गौर करिए। मैं चैलेंज करूंगा आपके सामने। इस हदीस के अंदर ये अल्फाज आया है सरकस घोड़ों की दुमे, यानी बिदकने वाला घोड़ा। जब घोड़ा बिदक जाता है ना तो फिर वो एक जगह पर खड़ा नहीं रहता है, वो बिदकता, वो उछलता है, फिर इधर उधर भागता है, उछलता है। अब वो पूंछ भागते हुए कैसे हिलाता है? वो ऐसे पूंछ हिलाता है। वो ऐसे एक बार करके ऐसे नहीं छोड़ देता है कि उसने छोड़ दिया फिर थोड़ी देर के लिए उठाया फिर ऐसे कर दिया। अगर बिदकने वाला घोड़ा अगर ऐसा करता हो तो 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। मुझे एक वीडियो दिखा देना कि जो उछल रहा हो, घोड़ा बिदक गया, वो उछल रहा हो और वो अपनी पूंछ को एक बार ऐसे उठाता है फिर ऐसे डाल देता है, फिर थोड़ी देर रुक जाता है, फिर वो उठाता है, फिर ऐसे कर देता है। ऐसा मुझे वीडियो दिखा दीजिए, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। सर्कस घोड़ा, बिदकने वाला घोड़ा, ठीक है। बिदकने वाला घोड़ा अगर इस तरीके से अपनी पूंछ को सीधा उठा दे, इस तरीके से बिल्कुल सीधा खड़ा कर दे कोई घोड़ा, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, 10 लाख रुपए दूंगा। आप कोई घोड़े का मुझे ऐसा वीडियो दिखा दीजिए, ऐसा घोड़ा दिखा दीजिए जो अपना पूंछ बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेता हो, ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा कर लेता हो, और फिर वो इसको नीचे कर लेता हो, फिर उसको दोबारा भी वो ऊपर कर लेता हो, बिल्कुल सीधा एकदम। मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। कोई भी घोड़ा अपना पूंछ है ना, वो बिल्कुल सीधा खड़ा करके रोक नहीं सकता। ऐसे लपक के ऐसे करेगा, वो ऐसे नीचे लेके आ जाएगा, लेकिन खड़ा नहीं कर सकता कि उसने बिल्कुल सीधा करके रोक लिया हो, बिल्कुल सीधा। कोई घोड़ा अपनी पूंछ को इस तरीके से खड़ा नहीं कर सकता। और रफउल यदैन के अंदर ये हाथ है ना, ये बिल्कुल खड़े होते कि नहीं होते? बिल्कुल खड़े होते। फिर हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं फरमाया इस हदीस के अंदर कि हम रफउल यदैन कर रहे थे, यानी रुकू करने से पहले हम अपना हाथ कंधों तक उठा रहे थे, फिर रुकू से उठने के बाद हम अपना हाथ कंधों तक उठा रहे थे। ये अल्फाज इस हदीस के अंदर नहीं है। अगर ये अल्फाज होते कि हम रुकू करने से पहले अपने हाथ कंधों तक उठा रहे थे, फिर रुकू से उठने के बाद हम अपने हाथ कंधों तक उठा रहे थे, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये अल्फाज से नवाजा, ये अल्फाज आपने कहे, तो ये बिल्कुल राइट थी। ये अल्फाज इस हदीस के अंदर नहीं है। फिर यहां पर गौर करिए कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने पर लगे हुए हैं लोग अपने मसलक के लिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद जो अमल किया करते थे और वही अमल जो सहाबा कर रहे थे, तो उनको कह रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूं कि आप नमाज के अंदर बिदकते हुए घोड़ों की तरह तुम हाथ उठा रहे हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल करते थे, रफउल यदैन करते थे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदकते हुए घोड़ों की पूंछ की तरह अपना हाथ उठाते थे, ऐसे उठाते थे। भाई बिदकने वाले घोड़े से मैच ही नहीं खाता ये रफउल यदैन, क्योंकि बिदकने वाला घोड़ा अपना सीधा बिल्कुल पूंछ खड़ा नहीं कर सकता, और फिर वो थोड़ी देर रुक कर फिर वो खड़ा ऐसे नहीं कर सकता। समझे कि नहीं? बिदकने वाला घोड़ा उछलता है तो वो अलातुल ऐसे लगातार अपने पूंछ को ऐसे पटकता है। तो ये रफउल यदैन है ना, ये जो जहां पर ये फिट कर रहे हैं ना, वहां पर फिट भी नहीं हो रहा है, वहां पर फिट भी नहीं हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? फिर यहां पर ये लिखा हुआ है कि सुकून इख्तियार करो। तो रफउल यदैन नहीं करना अगर सुकून इख्तियार होता है तो ईदों की नमाजों के अंदर ये रफउल यदैन क्यों किया जाता है? वहां पर भी रद्द होना चाहिए। तो नमाज है ना, क्या ईद की नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करने का यानी हुक्म नहीं है क्या? हुक्म नहीं है क्या? वो कैसे भी पढ़ सकते हैं क्या? नाच के भी पढ़ सकते हैं क्या? वहां पर ये जो नियम लागू नहीं होता इख्तियार वाला? तो ईदों की नमाज में क्यों करते हो? नमाज तो नमाज है ना। वहां पर सर्कस घोड़ों की दुम की तरह हाथ हिलाओगे आप,
वहां पर चलेगा, लेकिन 5 वक्त की नमाज के अंदर आप करोगे वो नहीं चलेगा। वहां भी क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर ईदों की नमाज नहीं पढ़ी थी क्या? पढ़ाई नहीं थी क्या? तो वहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों नहीं किया? नहीं बताइए, मना क्यों नहीं किया? क्यों मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हो? मैंने आपको चैलेंज कर दिया है कि कोई ऐसा घोड़ा दिखा दिए जो अपनी पूंछ को बिल्कुल बराबर ऐसे खड़ा कर लेता हो, सीधा रोक लेता हो वहां पर, फिर वो नीचे पटक कर थोड़ी देर के लिए फिर वो खड़ा कर लेता हो। ऐसे घोड़ा दिखा दीजिए मुझे, मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूं। बिदकने वाला घोड़ा सबको मालूम है कि पूंछ वो ऐसे पटकता है, ऐसे पटकता। तो इस हदीस के मुताबिक वो लोग अपने हाथ ऐसे हिला रहे थे, अपने हाथ ऐसे अलातुल हिला रहे थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए अल्फाज किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि घोड़ा बिदकने वाला घोड़ा कैसे पूंछ हिलाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तौहीन कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अपनी जिंदगी के अंदर सर्कस बिदकते हुए घोड़े की तरह अपने हाथ हिलाते रहे? उनको पता ही नहीं चला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं बिदकते हुए घोड़े की तरह हाथ उठा रहा हूं। उनको पता ही नहीं चला। बाद में पता चला जब दूसरे लोगों ने ये रफूल ये देन किया तो तब उनको पता चला। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रही है। समझे कि नहीं समझे? फिर सुकून इख्तियार करना, सुकून इख्तियार करना जब यही है कि रफूल देन ना करें तो सुकून इख्तियार होता है, तो फिर मैंने बता दिया कि ईदों की नमाजों के अंदर रफूल देन नहीं करना चाहिए। अब सुकून इख्तियार करने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? हदीस सही बुखारी नंबर 757 नंबर, 793 नंबर, 6251 नंबर और हदीस तिरमिजी 303 नंबर और निसाई 885 नंबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाकया है कि एक शख्स मस्जिद के अंदर आया और उसने 3 दफे नमाज पढ़ी। तीनों दफे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस उसे भेजा कि तुम्हारी नमाज नहीं, तुम नमाज पढ़ो। फिर उस शख्स ने क्या कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता नहीं, आप मुझे नमाज सिखा दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुकून इत्मीनान के साथ तकबीर कहो और जितना कुरान याद है वो इत्मीनान के साथ सुकून के साथ वो कुरान पढ़िए और इत्मीनान के साथ सुकून के साथ रुकू और सजदा करिए। इसको कहते हैं सुकून इख्तियार करना नमाज के अंदर। ये रफूल देन नहीं करना, ये सुकून नहीं है। फिर तो आप बैठ कर नमाज पढ़िए ना, उसमें ज्यादा सुकून है, क्यों नहीं पढ़ते? बैठ कर नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए ना, कि बैठने में ज्यादा सुकून है, खड़ा नहीं होता। खड़े होने में इंसान को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। समझे कि नहीं समझे? फिर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, जो बरेलवी मसलक के मौलाना से आपको दलील दे रहा हूं। जो मौलाना ने कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर मुकम्मल कायम रहने वाला सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु, ये उन्होंने दलील दिया, बरेलवी मसलक के मौलाना ने दलील दिया, मैं नहीं दे रहा हूं, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बिल्कुल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर कायम रहने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु थे। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते। यहां पर कंधों तक उठाने का जिक्र है और इन्होंने जो हदीस पेश की है उसके अंदर कंधों तक हाथ उठाने का जिक्र नहीं है। ठीक है। और इसी तरह जब आप रुकू करते तब भी करते और जब आप रुकू से अपना सर उठाते तब भी आप करते थे। यहां पर देखिए, और ये हदीस है ना, ये हदीस सही बुखारी के अंदर है 735 नंबर, 736 नंबर, 738 नंबर। हदीस मुस्लिम के अंदर है 861 नंबर, 862 नंबर। हदीस तिरमिजी के अंदर है 285 नंबर और हदीस इब्ने माजा के अंदर है 858 नंबर और हदीस अबू दाऊद के अंदर है 721, 722, 741, 742 और 743। हदीस निसाई के अंदर है 877, 878, 879, 1026, 1058 और 1060 और 1089 और 1145 नंबर। ये 6 हदीसों के अंदर ये हदीस मौजूद है। अब मुझे बताइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले इनकी वफात तो हुई थी नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी ये जो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, अगर इनकी वफात पहले हो जाती, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, तो ये हदीसें इनकी रद्द हो जाती। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी ये अपनी जिंदगी में मौजूद थे और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मुकम्मल अमल किया करते थे। और वही फरमा रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को कंधों तक उठाते और ऐसे ही जब रुकू करते और रुकू से उठते तब भी करते थे। तो ये हदीस कितनी मजबूत है कि ये हदीस 6 हदीस जो हमारी जो 6 हदीसें हैं, हदीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, निसाई, जो सबसे बेहतरीन जो 6 हदीसें हैं, 6 हदीसों के अंदर ये हदीस मौजूद है। जो कुरान के बाद सबसे बेहतरीन जो हदीस है हमारी बुखारी, उसके अंदर भी ये हदीस 3 जगहों पर मौजूद है।
आप गौर करिए इस बात के ऊपर कि जो सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके बिल्कुल तरीके पर कायम रहने वाले वो सहाबी बयान कर रहे हैं, और ये 6 हदीसों के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं। जो हदीसों के लिखने वाले इमाम है सब अपनी अपनी हदीसों के अंदर इस हदीस को लेकर आए। किसी ने ये नहीं लिखा कि ये हदीस ज़ईफ है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अगर ये हदीस मिल जाती कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के अंदर रफ़्उ अल यदैन नहीं किया था और मना कर दिया था, तो बिल्कुल परफेक्ट थे। अब इतनी हदीस मजबूत हदीस है, और हदीस इतने ये मजबूत जो रावी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनसे कोई दलील नहीं है रफ़्उ अल यदैन रद्द होने की। अगर इनसे दलील होती तो मान जाते बात, लेकिन रद्द नहीं है। मेरी बात गौर करिए, मेरे जो वीडियो है ना पढ़े लिखे लोग ज्यादा देखते हैं और वो सही और गलत का फैसला कर लेते हैं। फिर समझे कि नहीं समझे? अब आ जाइए, हजरत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते तो तकबीर तहरीमा के साथ रफ़ाउल यदैन करते, फिर जब रुकू जाते उस वक्त भी रफ़ाउल यदैन करते, और जब रुकू से उठते तब भी करते थे। अब इस हदीस के अंदर भी अल्फाज हैं कि रुकू के लिए जाते तब भी करते थे और रुकू से उठते वक्त भी करते थे, लेकिन इन्होंने जो हदीस बयान की उसके अंदर ये अल्फाज नहीं है। ये अल्फाज नहीं है कि रुकू जाते इस वक्त हम हाथों को उठाते थे और रुकू से उठते वक्त हम हाथों को उठाते थे। ये अल्फाज उस हदीस के अंदर नहीं है, और इस हदीस के अंदर है। और ये हदीस सही बुखारी के अंदर 737 नंबर है, हदीस मुस्लिम के अंदर 885 नंबर है, हदीस अबू दाऊद के अंदर 745 नंबर है, हदीस इब्ने माजा के अंदर 859 नंबर है, और निसाई के अंदर 881, 882, 1025, 1057। ये 5 हदीसों के अंदर ये हदीस मौजूद है। समझे कि नहीं समझे? अब इस हदीस के अंदर है ना रुकू का भी नाम, रुकू जाते समय और रुकू से उठते समय, ये अल्फाज इस हदीस के अंदर हैं। इन्होंने जो हदीस अल्फाज की उसके अंदर ये अल्फाज नहीं है। समझे कि नहीं समझे? गौर करिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। फिर आ जाइए, हजरत वाइल बिन अजर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को बुलंद किया करते थे, हाथों को बुलंद किया करते थे। तकबीर कही, फिर अपना कपड़ा ओढ़ लिया, फिर अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रख लिया, फिर रुकू करना चाहे तो अपने हाथ कपड़े से बाहर निकाले और बुलंद किए, फिर तकबीर कही, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा तो अपने हाथों को बुलंद किए, फिर जब सजदा किया तो अपने हाथों को हथेलियों के बीच अपना सजदा किया। अब यहां पर भी इस हदीस के अंदर अल्फाज बिल्कुल साफ आ गए। ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर 896 नंबर, हदीस इब्ने माजा के अंदर 867 नंबर, और हदीस अबू दाऊद के अंदर 723 नंबर और 726 नंबर, और हदीस निसाई 890 नंबर, 1056 नंबर, 1103 नंबर, 1160 नंबर और 1266 नंबर। ये हदीस इन हदीसों के अंदर मौजूद है। यहां पर भी देख लीजिए, हजरत वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करना चाहते तो अपने दोनों हाथों को बुलंद करते, ठीक है, और जब रुकू से उठते तो भी अपने हाथों को बुलंद करते। अब इस सहाबी से भी कोई ऐसी दलील नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त के अंदर रफ़्उल यदैन करना छोड़ दिया था। इनसे भी कोई दलील नहीं है। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मौजूद थे। इनकी वफात भी पहले नहीं हुई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। समझे कि ये कैसे मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। फिर आज ये हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फर्ज नमाज पढ़ने खड़े होते तो अपने दोनों हाथ अपने कंधों के बराबर उठाते, और ऐसा उस वक्त भी करते जब आप किरत पूरी कर लेते और रुकू का इरादा करते, और ऐसा ही आप रुकू से उठते वक्त भी करते थे। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मौजूद थे, और इनसे करीब हो कौन सकता है? ये जो हजरत जाबिर बिन समूरा की जो रिवायत ये बयान कर रहे हैं, उनसे कई हजार गुना ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी हैं, चचा के बेटे भी हैं और दामाद भी हैं। इनके सामने हजरत जाबिर बिन समूरा क्या है? कुछ भी नहीं है। इनके मुकाबले के अंदर कुछ भी नहीं है हजरत जाबिर बिन समूरा जो ये हदीस बयान कर रहे हैं। तो जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये दलील है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे हैं और साथ में बड़े हुए हैं, बचपन साथ में गुजरा है, और दामाद भी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब इनसे करीबी कोई हो सकता है? अब मुझे बताइए, करीबी इंसान की बात को मानोगे या जो दूसरा करीबी नहीं उसकी बात को आप ज्यादा मानोगे? और ये हदीस तिरमिजी के अंदर 3423 नंबर है, हदीस अबू दाऊद के अंदर 744 नंबर और 761 नंबर है, और हदीस इब्ने माजा के अंदर 864 नंबर है। 3 हदीसों के अंदर ये हदीस मौजूद है। आप गौर करिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनसे करीब कोई हो सकता है क्या?
हजरत जाबिर बिन समूरा जो ये हदीस बयान कर रहे हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी नहीं है। ये तो इनका खून का रिश्ता है। अब खून का रिश्ता है उसकी बात को माना जाएगा, जो बगैर खून का रिश्ता है उसकी बात को ज्यादा माना जाएगा, किसकी बात को अहमियत दी जाएगी। लेकिन इनको मसलक प्यारा है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मसलक प्यारा है। इनको हदीस, कुरान और हदीस से, सच्चाई से प्यार नहीं है, इनको मसलक से प्यार है, समझिए। फिर आ जाइए, हजरत अबू हुमैदी रदियल्लाहु अन्हु कह रहे थे कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का ज्यादा जानकार हूं। तो लोगों ने कहा कि क्या तुम्हें ना तो हमसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली है और ना ही तुम हमसे ज्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते जाते। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका मुझे ज्यादा याद है। इस पर लोगों ने कहा कि पेश करो। उन्होंने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो बिल्कुल सीधे खड़े होते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहां तक कि उन्हें कंधों के बराबर ले जाते। फिर जब रुकू का इरादा करते तो अपने दोनों को हाथों को कंधों के बराबर उठाते और अल्लाहु अकबर कहते, और रुकू से जब सीधे होते तो अपना सर, जब रुकू में जाते तो अपना सर ना तो ज्यादा नीचे रखते थे और ना ज्यादा ऊपर रखते थे, और अपने हाथों को घुटनों पर रख लेते थे और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते और फिर अपने दोनों हाथों को उठाते। अब यहां पर भी आप देख लीजिए, ये भी जो सहाबी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद मौजूद थे, इनका भी इंतकाल नहीं हुआ था, ये भी मौजूद थे। और ये हदीस तिरमिजी के अंदर 304 नंबर है, हदीस इब्ने माजा के अंदर 862 नंबर है और 863 नंबर है, और हदीस अबू दाऊद के अंदर 330 नंबर है। समझे कि नहीं समझे? अब इनके पास रफ़ाउल यदैन रद्द होने की एक हदीस है जो भी बिल्कुल सही नहीं है, उसको मैंने गलत साबित कर दिया है, आपको बता दिया है। और मैंने इनकी हदीस के ऊपर चैलेंज भी कर दिया है 10 लाख रुपए का कि एक घोड़ा ऐसे दिखा दो जिसने अपनी पूंछ बिल्कुल सीधी कर ली हो और उधर रोक ली हो, और फिर उसने पटक लियो, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर उसने सीधी कर ली हो, और वो बिदकता हो, उछलता हुआ बिदकता हुआ घोड़ा किसको बोलते हैं? वो उछल रहा है और उछलता उसने बिल्कुल सीधी पूंछ करके रखी, रोकी हुई रखी, और फिर इसने नीचे की और फिर उसने फिर रोकी हुई रखी। एक ऐसा घोड़ा दिखा दो, मुझे 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। मैंने चैलेंज कर दिया, तुम्हारे ऊपर, तुम हक पर हो, नहीं तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सच्चाई की तरफ आइए। ये मसलक के दलाल हैं, ये मसलकों के दलाल हैं, ये हकीकत आपको नहीं बताएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैंने जो दलीलें दी है ना, इनको अगर कोई गलत साबित कर देना, कसम परवरदिगार की उसका जिंदगी भर गुलाम रह जाऊंगा, जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा मैं। अब आ जाइए, इन्होंने एक हदीस की दलील लेकर आई और मैंने जो दलील दी है वो यहां पर 6 दलीलें दी है। 6 रावी हैं अलग अलग, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत मालिक बिन हुवैरिस और हजरत वाइल बिन हजर और हजरत अली बिन तालिब और हजरत अबू हुमैदी, यानी 5 दलील और भी मेरे पास। लेकिन मैं मेन जो चीजें लेके आऊं, वहां पर मैंने आपको 5 रावी बताए, 5 सहाबियों ने जो दलील दी है, और वो भी टॉप के हैं। जो ये जो सहाबी की जिसकी वो दलील लेकर आए ना, उनसे कई गुना ज्यादा टॉप के सहाबी हैं ये, जो खुद ये दलील दे रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल नक्शे कदम पर रहने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और दामाद हजरत अली बिन तालिब रदियल्लाहु अन्हु। इनसे बड़ी दलील हो सकती है क्या ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते थे? जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद में ये मौजूद थे ये लोग। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अब गौर करिए आप, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ाउल यदैन किया करते थे। ये बरेलवी मसलक का मौलाना फारूक रज़वी ने ये दलील दी है, ठीक है, वो रफ़ाउल यदैन किया करते थे। अब कुरान मजीद के बाद सबसे टॉप की हदीस सही बुखारी है, और बिल्कुल सही हदीस है, वो सारे मसलक वाले इस बात को मानते हैं। अब मुझे बताइए, जिस शख्स ने अपनी हदीस लिखी, कई सालों तक 16-17 सालों तक मेहनत करके उन्होंने कई मुल्कों में जाकर हदीसों को जमा किया और एक सही हदीस अलग निकाली, वो शख्स अपनी जिंदगी के अंदर रफ़ाउल यदैन करते रहे और वो उनको पता नहीं लगा, उनको ये पता नहीं लगा कि ये रफ़ाउल यदैन रद्द हो चुका है। वो पूरी जिंदगी बेवकूफ बनते रहे। भाई जो चीज रद्द हो गई, फिर वो जो रद्द हुई चीज वो जो इंसान करता है तो वो बेवकूफ ही होता है ना, उससे बड़ा फिर कोई बेवकूफ होता है? अब इन लोगों ने ना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को भी बेवकूफ बना दिया, उनको भी बेवकूफ घोषित कर दिया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो अमल रद्द हो चुका था वो अमल अपनी जिंदगी में करते रहे, यानी वो बेवकूफ थे। और जिनकी हदीसों से ये पढ़कर आने ये आलिम मुफ्ती बनते हैं, मौलाना बनते हैं, और उन्हीं हदीस के लिखने वाले को इन्होंने बेवकूफ घोषित कर दिया कि वो बेवकूफ थे, उनको अपनी जिंदगी में पता नहीं लगा कि रफ़ाउल यदैन रद्द हो चुका है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सोचिए आप ये कहां पर आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है। और फिर इनके गोश्त पाक,
देखिए मजे वाली बात देखिए, इनके गोश्त पाक अपनी मां के पेट में थे और गोश्त पाक की मां जल्दी जल्दी नमाज उन्होंने पढ़ी, तो गोश्त पाक को पता लग गया अंदर से कि मेरी मां जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रही है। उन्होंने आवाज भी दे दी कि सुकून के साथ नमाज पढ़ मेरी मां। पेट के अंदर पता लग चुका है गोश्त पाक को, जो गोश्त पाक इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उनको पता लग चुका कि मेरी मां नमाज के अंदर जल्दबाजी कर रही है। और इनके गोश्त पाक रफोल देन करते थे। अब इनके गोश्त पाक को यह पता नहीं लगा कि रफोल देन रद्द हो चुका है। इनके बड़े पीर साहब भी बेवकूफ थे। इनके पीर साहब बड़े बेवकूफ थे, जो अमल रद्द हो चुका था वो रद्द अमल अपनी जिंदगी में करते रहे। तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई हो सकता है कि उनको पता नहीं लगा। और गोश्त पाक के मुरीदों को सब पता लग चुका है कि ये जो रफोल देन करने वाली ये है ना, ये सुन्नत रद्द हो चुकी, इनको पता लग चुका है। गोश्त पाक को पेट के अंदर पता लग चुका है कि मेरी मां जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रही है, लेकिन दुनिया में आने के बाद उनको यह पता नहीं लगा कि ये रफोल देन रद्द हो चुका है और वो रद्द अमल वो अपनी जिंदगी में करते रहे। यानी उनसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इन लोगों ने ना अपने गोश्त पाक को भी है ना बेवकूफ घोषित कर दिया है। अरे भाई, जो 12 साल की बड़ी डूबी हुई बरात को जिंदा करके निकाला, अल्लाह 70 बार दिन में कहता है कि अब्दुल कादिर जिलानी तू खा ले, तब वो खाना खाते थे और बैठे बैठे मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे थे और समंदर में कश्ती डूब रही थी, वहां बैठे बैठे हाथ से ले जाकर उस कश्ती को बचा लिया। उस गोश्त पाक को ये रफोलियत देन के बारे में पता नहीं लगा, जो दिन के अंदर 5 वक्त करते रहे। उनको रफोलियत देन के बारे में पता नहीं लगा कि ये अमल है, ये जो सुन्नत है ये रद्द हो चुकी है, उनको पता नहीं लगा। और मां के पेट के अंदर ये पता लग चुका है कि मेरी मां नमाज के अंदर जल्दी कर रही है, और बोल के भी कह दिया। बताइए, और उस गोश्त पाक को ही पता नहीं लगा। तो इनके गोश्त पाक क्या थे? बेवकूफ थे। इन्होंने अपने गोश्त पाक को भी बेवकूफ घोषित कर दिया है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हालात है इनके। अपनी मां के पेट के अंदर कोई भी बच्चा सांस नहीं ले सकता, ना अपना मुंह खोल सकता है, क्योंकि वो पानी के बीच में रहता है। सबको पता, वो पानी के बीच में रहता है। अगर वो अंदर में अगर सांस लेगा, नाक से अगर सांस लेगा, तो वो पानी अंदर में चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। अगर वो जुबान मुंह खोलेगा तो वो पानी अंदर में चला जाएगा और वो बच्चा खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके गोश्त पाक है ना, पेट के अंदर बोलकर कह दिया कि मेरी मां तू इत्मीनान से नमाज पढ़। बताइए, और इनके गोश्त पाक को यह पता नहीं लगा कि रफोलियत देन रद्द हो चुका है और रद्द अमल अपनी जिंदगी में करते रहे और वो बेवकूफ वाला काम करते रहे। बेवकूफ हो गए ना। अरे भाई, रफोलियत देन जो रद्द हो चुका है, रद्द अमल वो जिंदगी में करते रहे, तो उनसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो ये तो इनके गोश्त पाक तो बेवकूफ थे, और इनके जो मुरीद हैं वो बेवकूफ नहीं थे, ये ज्ञानी लोग हैं। इनको पता लग चुका है कि रफोलियत देन रद्द हो चुका है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हालात है। रफाउलियत देन करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इन्होंने जो हदीस जो बयान की है, उस हदीस के अंदर ये अल्फाज नहीं है कि हम, जो हजरत जाबिर बिन समूरा से ये अल्फाज नहीं है कि हम नमाज के अंदर कंधों तक हाथ उठा रहे थे रुकू करने से पहले और रुकू से उठने के बाद हाथ उठा रहे थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज कहे हैं। ये अल्फाज इस हदीस के अंदर नहीं। अगर ये होते तो ये हदीस सही थी, लेकिन ये अल्फाज नहीं है। बाकी जो रफौलियत देन की जो हदीस है मैंने आपके सामने पेश किया ना, उनके अंदर ये अल्फाज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधों तक हाथ उठाया करते थे रुकू करने से पहले और रुकू से उठने के बाद भी अपने हाथ कंधों तक उठाया करते थे। ये अल्फाज है, लेकिन इन्होंने जो हदीस बयान की उसके अंदर ये अल्फाज नहीं है। यहां पर ये हदीस, और मैंने जो घोड़े की जो दुम है ना, उसके ऊपर भी मैंने चैलेंज कर दिया, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर एक भी घोड़ा दिखा दो कि वो बिदकता हो, उछलता हुआ और अपनी पूंछ को बिल्कुल खड़ा रखता हो। 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, क्योंकि रफौलियत देन के अंदर सीधे हाथ खड़े होते हैं ऐसे। समझे कि नहीं समझे? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये मेरा वीडियो ना इन मौलाना तक भी पहुंचा दीजिए। और आज से अगर आप हक को कबूल करना चाहते हैं और हक पर आप ईमान रखना चाहते हैं, ईमान लाना चाहते हैं, तो रफौलियत देन करना शुरू कर दीजिए। मैंने दलील और सबूत दे दिया है, और मेरी इन दलीलों को अगर कोई गलत और झूठा साबित कर दे तो कसम परवरदिगार की 10 नहीं 20 लाख रुपए इनाम दूंगा उसको। समझे कि नहीं समझे? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और ये वीडियो ना, मेरा ये वीडियो अपने मौलानों के पास बैठकर उनको दिखाइए और उनसे सवाल करिए। उनके पास कोई सवाल नहीं होगा, आपको घुमाएंगे, वो आपको फंसाएंगे बातों के अंदर। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकेंगे। आप जाकर देख लेना, मेरा ये वीडियो उनको दिखा देना और आप जाके देख लेना। वो आपको खुद को घुमाएंगे फिराएंगे और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें आप।